Hello, hi everyone. Hi Samiksha, hi Vaishali, can you hear me? Tell me guys, am I audible? Yeah, so I can. Cool. Samiksha, hope you can hear me as well. My screen is visible as well. बताओ तो हाँ कि ना? I'm assuming it's okay. Vaishali, you can see my screen at least? Yeah, so I can see. Yeah, cool, perfect. So, yeah, let's start off with why we have gathered today. I think this is the first time I'm taking a session for you all, right? So, a bit about me. I'm Siddharth. Yeah, I'm a qualified actuary, and I've been a statistic educator for past couple of years, more than a couple of years, in fact, 2.5 years now, right? And that's why the need of me coming in here and talking about probabilities, the QA, जो cons वाला portion है, right? That's what I'd be covering with y'all, right? So we'll have this as a revision series, right? That's what we are calling it. So we won't go into like the particulars of every chapter, right? But we'll touch everything, right? We'll go get into every topic. जैसे आज we've planned to get into fundamentals of probabilities and random variables, right? So we'll try to get into what these are, what do we mean by probability and everything. So as we go through, right, at any point of time, अगर आप लोगों को लगे कि चल रहा है क्लास कैसा चल रहा है, स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, थोड़ा सा मतलब आप लोगों के बैकग्राउंड में you'll have to do the grunt work, right, to make sure that you are in line with where we are doing these classes as well. So make sure you are voicing those things, right, and letting me know as and when you need me to pace these classes accordingly. Does that make sense, guys? Yes or no? बताओ. Yeah, so Yeah. So for now, I'm starting off with these sessions on Monday, Wednesday, and Friday, an early session on each of these 3 days, right? That's what I've planned for now. And as they need be, we may either extend or cut short, right? So yeah, let's get started. Hopefully you all can see my screen as well. So the first chapter is about, hello, hi Manoj, hope you can hear me. See the screen. Yeah. बताओ. Yeah. So, like I said, we are starting with the revision series for L1 quants, right? So, the first thing that we have here is probability fundamentals, right? So, we'll be starting off with that. Yeah. Uh, right. So, the first topic in itself was a very interesting and a very sort of, uh, like, how should I put it? The foundation of statistics in a way, right? That talks about probability. So, if you all may want to take a risk, guess क्या होता है यार? Probability बताओ तो. Everyone's comfortable with Hindi here? Yeah? क्योंकि I have a bad habit of. Yes, sir. Yeah? Yeah? Cool. So, क्या होता है भाई probabilities बताओ. Tell me, क्या होता है probabilities? कभी तो पढ़ा होगा क्लास 11, 12, 10 में. बहुत बार पढ़ा होगा probabilities वो हाई स्कूल में. बताइए क्या होता है probability? बोलो it's बोलो. like an event happening or not, right? Okay. Chances of event happening. Right. Okay. देखो क्या होता है चांस ही प्रोबेबिलिटी होता है करेक्ट जहां भी कुछ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है राइट थिंग्स आर नॉट सर्टेन यू डोंट नो डेफिनेटली व्हाट द आउटकम वुड बी फॉर एग्जांपल मैं कहूं कल बारिश होगी या नहीं होगी there'll be a rainfall tomorrow or not right so if you open your like weather app on your mobile phone right you'll look at there's a x percentage वाला वो chances दे रखे रहते हैं right this percent chance that at the end of the day is probability as simple as that jahan bhi there is uncertainty involved now it can be related to an event it can be related to a variable right wherever there is some uncertainty about an outcome right we will talk about probabilities does that make sense yes or no बताओ क्या ये बात clear है right now whenever we talk about probabilities right for example let's take a very basic example right tossing a coin is one of those examples जो मुझे बहुत ही basic लगता है and like easy to understand है correct तो tossing a coin में
जो दो आउटकम्स हैं वो क्या हो सकते हैं? एक बार अगर आपने कॉइन उछाला तो क्या पॉसिबल आउटकम्स है बताओ तो? Head or बताइए। tail? हेड और टेल। सॉरी। नाउ इफ इट इज अ फेयर कॉइन, व्हाट डू आई मीन बाय फेयर कॉइन? फेयर कॉइन मतलब दोनों हिस्से अच्छे से पॉलिश्ड है, मतलब किसी एक को अनड्यू एडवांटेज नहीं है। तो अब आप लोग विद अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंड विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट इज सेट कि आपको क्या लगेगा, क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने का, क्या प्रोबेबिलिटी है टेल आने का? एनीवन? 50%. 50%, आधा आधा प्रोबेबिलिटी है ना? बताओ यार, हाँ कि ना? टेल मी गाइस, डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? सो one thing that we know from probability here is the probability of any outcome needs to be between 0 and 1, right? So probabilities will always be between zeros and ones. कभी भी जीरो से कम नहीं होगा, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, राइट? किसी एक चीज की संभावना नेगेटिव हो ही नहीं सकती, या तो जीरो होगी, इसका मतलब इवेंट होने का कोई चांस नहीं है, राइट? या वन होगा मतलब 100% चांस है उस इवेंट होने का, राइट? एंड इट विल लाई बिटवीन दीज टू numbers, right? Does that make sense? Yes or no? क्लियर है बात? Yes. या अच्छा, यहाँ पे ना कुछ 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 चीजें हमें सिखाई जाती थी जब हम 11-12 में थे, अगर आप लोग को याद होगा। सो आई जस्ट डू अ क्विक रिफ्रेशर ऑफ दोस थिंग्स सो वी नो व्हाट दोस वर। एक सैंपल स्पेस करके था, याद है? बताओ तो। हाँ. राइट, सो इट वाज अ सेट ऑफ व्हाट? इट वाज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, करेक्ट? हाँ कि ना? Yes. बताओ हाँ कि ना? डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर मैं बात करूं, मेरा सैंपल स्पेस क्या हुआ? एच एंड टी, करेक्ट? Yes. यस। फिर क्या होता था? एक होता था इवेंट स्पेस, मतलब आउट पॉसिबल आउटकम्स इन आर इन द इंटरेस्टेड इवेंट। मतलब जैसे अगर मैं बोल दूं ऑब्टेनिंग अ हेड, राइट? जैसे ऊपर मैंने ऑब्टेनिंग, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे ऑब्टेनिंग अ हेड, राइट, तो मेरा इवेंट स्पेस क्या हो जाएगा? बताओ तो, बताओ तो। ऑब्टेनिंग अ हेड में मेरा इवेंट स्पेस कुछ ऐसा दिखेगा? टेल मी गाइस, हाँ कि ना? Yes, just या touch. राइट, जस्ट एच, करेक्ट, राइट? तो ये हो गया अपना सैंपल स्पेस, ये हो गया अपना इवेंट स्पेस, राइट? अच्छा, अब एक चीज समझ लो, इस बेसिस पे अगर मैं प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन करना चाहूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी कैन थोड़ा थोड़ा टेक्निकल, मतलब बहुत ही बेसिक टेक्निकल है वैसे तो, बट अ वेरी लाइक बेसिक थिंक ऑफ वे ऑफ थिंकिंग दिस इज कि मतलब अपना जो प्रोबेबिलिटी है, इट इज नंबर इन योर इवेंट स्पेस, right? Number of items in your event space, right? For example, in this case, one, and number of outcomes in your sample space, right? So, interested number of outcomes divided by total number of outcomes. क्या ये बात क्लियर है? बताओ सबको, हाँ कि ना? Yes. यस। चलो, अगर ये बात क्लियर है तो अ, एक और चीज अपने समझते हैं। ये दो चीजें अपने समझने की जरूरत है, एक इंटरसेक्शन और एक यूनियन, राइट? सो दीज आर टू थिंग्स दैट विल लर्न अबाउट कि इंटरसेक्शन एंड यूनियंस कैसे वर्क करते हैं। ये सबसे आसान रहता है समझना विद द हेल्प ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सैंपल स्पेस है, एक इवेंट हुआ ये, से आई मेक इट विद डिफरेंट कलर्स, से एक इवेंट है ए, राइट? एंड से देयर इज अनदर इवेंट से बी, ठीक है? तो ये इवेंट ए है और ये इवेंट ए है, सॉरी, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कहूं तो कौन सा शेडेड पोर्शन होगा? बताओ तो। क्या ए इंटरसेक्शन बी को मैं ये वाला पोर्शन मान सकता हूं? Yes. बताओ तो। डज एवरीवन अग्री? करेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों अगर हो उसका क्या चांस है? समझ गए? बोथ ए एंड बी अगर टुगेदर, दैट चांस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। डज दैट मेक सेंस? करेक्ट, हाँ कि ना? Yes. बोलो, राइट? सिमिलरली अब ये समझो ए यूनियन बी क्या होगा? बताओ, ए यूनियन बी क्या होगा? Both the circles together. बोथ दी सर्कल्स टुगेदर, करेक्ट। सो अगर मैं ए यूनियन बी करना चाहूं
तो मुझे क्या शेड करना पड़ेगा? आई हैव टू एंड अप शेडिंग द एंटायर रीजन। तो अगर ऐसी बात है तो क्या मैं ये यूनियन बी के लिए ऐसा कुछ फॉर्मूला लिख सकता हूँ? पी ऑफ ए, देखो ध्यान से देखना, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, मतलब दोनों सर्कल एक एक बार आ गए। क्या चीज एक्स्ट्रा आ गया बताओ तो? इंटरसेक्शन। पी ए इंटरसेक्शन बी, तो एक बार उसको माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? बताओ किसी को कोई भी दिक्कत? एनी क्वेश्चंस करते हैं गाइस? चलो, अगर ये बात क्लियर है तो अब आप अपने आते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन वाला। अगर कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हो गया है तो एक और कॉन्सेप्ट है अपना जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, जो भी आपने कहीं ना कहीं सीखा होगा या पढ़ा होगा, बट लेट्स ट्राई टू रिवाइज दैट। ओके, सो द लॉजिक ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब से एक इवेंट हो गया है, से ऊपर वाले सैंपल स्पेस में इवेंट बी हो गया है, then you need to find out what is the probability of A occurring. अच्छा, if I go back to the previous example, अगर इवेंट A हो गया है, इसका मतलब सॉरी इवेंट B हो गया है, मतलब मेरा नया सैंपल स्पेस ये बन गया ना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी हो चुका है। बताओ हाँ कि ना? Tell me guys, yes or no? So can you just repeat? I didn't get it. Sure. First of all, what is PA given B? The conditional probability of A given that event B has occurred. मतलब the probability that A will now take place given B that B has already occurred. ये बात समझ में आई? Yeah. Yeah. Now, how do you find that out? The way you find that out is you now ऐसा सोचो कि B already हो गया है, हाँ कि ना? Correct? Given B है ना? Yeah. Right? So this becomes my new sample space sort of, right? These probabilities are no longer as relevant for me. Yeah. Right? And now that B has occurred, what is the probability that A will occur? This shaded portion right here. बताओ तो? Because the rest of it cannot occur, right? Because the event B has already occurred. Yeah? Yeah. Now if you look at the formula, we'll be able to make sense of it. So in the numerator, we'll have P A intersection B, and the denominator will have PB. Reason. हाँ बोल. Can you take any other example? Any other example in the sense, इसको कुछ example लेके बताऊं? Confused. कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखो लॉजिक ऐसा समझो एक दो इवेंट लो, ठीक है? लेट्स टेक टू इवेंट्स, राइट? I'm not taking financial events for now, trying to keep it simple. Yeah, chalo, let's take a financial impact and let's take a very recent event. Okay, say event A is Trump announcing tariff. And event B is what? Let's see, Dow Jones increasing. Okay, Dow Jones is basically the index in the US, right? So ये दोनों मैंने इवेंट्स को ऐसे डिफाइन किया, इवेंट ए ये है, इवेंट बी है। मैं अब ये जानना चाहता हूं कि गिवन ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए हैं, हिसाब से मैं बी गिवन ए जानना चाहता हूं, तो चलो इसको चेंज कर देता हूं, मैं इसको बी बना देता हूं, इसको ए बना देता हूं, ठीक है? राइट? मैं क्या कह रहा हूं, गिवन ट्रम्प ने टैरिफ्स अनाउंस कर दिए तो डाउ जोन्स बढ़ेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? समझ में आया मनोज क्या निकालना चाह रहे हैं हम? व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट? अच्छा, अगर टैरिफ्स अनाउंस हो गए हैं तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे हूँ, ये सब तो नहीं हुआ ना, बाहर वाला पोर्शन कुछ भी, राइट? तो मैं यहाँ पे हूँ, वाला पार्ट है, वही प्रोबेबिलिटी है, तो वही प्रोबेबिलिटी है। बट क्योंकि मुझे पता है बी हो चुका है, ए इंटरसेक्शन बी तो उस रेफरेंस में है, पूरे सैंपल स्पेस के रेफरेंस में है ना वो, ये वाला पोर्शन। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो पार्ट है इसको डिवाइड करूंगा। समझ गए? Does that make sense to everyone? Yes, sir. Yeah. All good, guys. Now this is what we call
conditional probabilities. In conditional probabilities को हम और अच्छे से भी पढ़ेंगे in fact, right? We'll talk about these when we get to, there's a chapter called joint variables, random variables में joint random variables अपने पढ़ते हैं, तो उसमें अपने और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? So don't worry about that. We'll talk about it further as well. अभी इतना बताओ, क्लियर है सबको? किसी को कोई भी दिक्कत? Yes, sir. Clear. चलो, cool. The next thing is, sorry, हाँ समीक्षा, आप कुछ कह रहे हो? No, sir. Cool, perfect. Now, the next topic is, are two events independent? अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? So next topic is of independence. Independence of events. राइट तो अभी तक हम दो इवेंट की बात कर रहे थे, इवेंट ए, इवेंट बी, राइट? से राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डाउ जोन्स इंक्रीजिंग एंड ट्रम्प अनाउंसिंग टैरिफ्स, राइट? तो व्हेन आर दीज टू इवेंट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये समझने की कोशिश करते हैं. अच्छा, एक बात बताओ, इंडिपेंडेंस जब होगा ना, तब होगा ना जब बी को ए से फर्क नहीं पड़ता और ए को बी से फर्क नहीं पड़ता. यही तो हुआ ना इंडिपेंडेंट? बताओ तो, करेक्ट? Yeah. अगर ऐसा होगा तो क्या मैं कह सकता हूं पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0. ओके, नाउ आई अग्री, ये एक तरीका है सोचने का, ठीक है? बट और कुछ हो सकता है क्या इसका? देखो, मैं यहाँ पे जी. कहूंगा कि इवन व्हेन they are independent of each other, there can be an intersection probability. I'll tell you why. ठीक है? There is still a chance कि ट्रम्प ने, एक बात बताओ, ट्रम्प ने आज टैरिफ अनाउंस किया, ओके? कल डाउ जोन्स या तो बढ़ा या घटा, राइट? तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना. तो इसका मतलब ये थोड़ी है दोनों एक दूसरे से पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है. बताओ तो, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आई बात? ट्रम्प ने आज टैरिफ अनाउंस किया तो कल या तो मार्केट बढ़ेगा या तो कम होगा. तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, इनबिल्ट प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी ना. इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों लाइक इंडिपेंडेंट नहीं है. मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? या सो पी ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 नहीं भी हो तभी भी इंडिपेंडेंस हो सकता है, राइट? कैसे होगा ये समझने की कोशिश करते हैं. इनफैक्ट पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा तो इंडिपेंडेंस अपने कर ही नहीं पाएंगे प्रूफ. पता है क्यों? देखो, तो पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी का एक फॉर्मूला होता है कि टू इवेंट्स, ओके, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट when P A intersection B is equals to probability A into probability B. जब आपका जो इंटरसेक्शन है ना, वो अगर आप सोचो ए बी हो, उसकी लो प्रोबेबिलिटी लो, बी लो, दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो. अगर वो आपके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी आ जाए, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है. सोचो, आपने इंडिपेंडेंटली देखा क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर आने का, आपने इंडिपेंडेंटली देखा ट्रम्प के टैरिफ को अनाउंस करने का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वही निकला कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी. इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है. समझ गए? अगर इसको और इंट्यूटिवली समझना है, ये देखो, इस पी गिवन ए का अगर मैं निकालूं, क्या होता है पी गिवन ए? ऊपर लिखा है ना पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ए, राइट? यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर? पी ए इंटू पी बी, अभी सीखा मैंने, डिवाइड बाय पी ए हो जाएगा, इक्वल्स पी बी हो जाएगा, राइट? सो इफ यू लुक एट दिस, राइट, यू सी व्हाट, दैट पी बी गिवन ए को ए से फर्क पड़ा क्या? बताओ तो. No. नहीं फर्क पड़ा ना. ए हुआ कि नहीं उसको फर्क नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी रहेगा. समझ गए? Does that make sense? When are two events independent of each other? So another way to look at it is like if we imagine two circles, so basically there's no intersection, right? So it's Correct. just that so both circles together are A intersection B because there's no intersection. I mean, there's no commonality, right? There is a commonality यार यहाँ पे. So I'm not saying, so even these two events can be independent. For example, if probability of A, the entire circle here, is say 0.6, right? The entire circle B is say 0.3, and if this circle here, this common part is 0.18, then they are independent of each other.
Okay. ओके जो आप कह रहे हो वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिटर्न्स कि दोनों एक दूसरे के साथ Yeah. होते ही नहीं है Right. समझ रहे हो क्लियर है एनी क्वेश्चंस so far so good yeah Yeah, sir. चलो बढ़िया in that case let's move on to the next part where we'll be talking about something called the Bayes rule or the Bayes theorem right now this is a really interesting one for that matter ठीक है again it helps you calculate some sort of a conditional probability using some probability measures right we'll try to understand what it is all about ठीक है so let's write down what the Bayes theorem is for us ठीक है चलो लिखते हैं Bayes theorem okay now in the Bayes theorem what happens is again let's try to first understand it with the help of set theory ठीक है easy simplify कर देता है चीजों को now in Bayes theorem what you say is first we divide our entire what do you call like sample set right जो भी अपना sample set है into partition sets now what do partition sets mean सब सबका एरिया मिला के क्या आया बताओ तो बोलो तो चारों देखो मैंने 4 एरिया में डिवाइड किया चारों एरिया मिला के सैंपल सेट आया कि नहीं आया करेक्ट गाइस यस और नो बोलो Yes. right for example I'll call this one B1 here just give me a second I'll call this one B1 I'll call this one B2 this one B3 and this one B4 right आप एक तरीके से सोच सकते हो पार्टीशन सेट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहते हैं माने उनमें कोई ओवरलैप नहीं है बट चारों एक साथ मिलके क्या बनते हैं सैंपल सेट बनते हैं समझ गए सैंपल स्पेस बन जाते हैं डज दैट मेक सेंस यस और नो Yes. right for example if you can think of it this way कि if you say कि आपके पास 4 ही पोर्टफोलियोज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका इन्वेस्टमेंट का जो रूल्स है ऐसा है कि आप दो इन्वेस्टमेंट में दो पोर्टफोलियोज में साथ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते so you have got 4 mutual funds to invest in right and now you can invest in at most one fund right आप तो ऐसा कुछ बनेगा बताओ हाँ कि ना सैंपल स्पेस कि आप किस फंड में इन्वेस्ट करोगे राइट नाउ फॉर एग्जांपल एन इवेंट हैज अकर्ड now an event has occurred in this particular space which is say I am calling A ठीक है say A is the event of you achieving a certain percentage of return say high return ठीक है से हाई रिटर्न लो रिटर्न ऐसे करके मल्टीपल रिटर्न्स वगैरह वगैरह थे तो आपने हाई रिटर्न आपने अचीव किया ए वाला जो स्पेस इवेंट वाला था वो अचीव किया राइट तो बेस थ्योरम बेसिकली आपको क्या देता है ना बेस थ्योरम हेल्प्स यू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी व्हिच इज पी ऑफ बी आई गिवन ए समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है अगेन आप क्या कह रहे हो आप कह रहे हो कि इवेंट ए हो चुका है बताओ हाँ कि ना tell me guys what I'm trying to say is the event A has already taken place बोलो तो Yeah. So Yeah. we are saying that A has happened. So what is the probability BI is happening? what is the probability that it is happening because of BI ठीक है let's go back to our example say BI in this case let's take B1 right say you know you have achieved 10% returns right what is the probability now it happened because of you investing in B1 अब मैंने कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता था ना मैं B1 में भी कर सकता था B2 में भी कर सकता था B3 में भी कर सकता था B4 में भी कर सकता था what is the probability that I got that because of investing in probability in B1 does that make sense guys yes or no बताओ तो Yes. या अच्छा अब ऊपर भी हमने ये लॉजिक समझा था ना जो चीज
गिवन है उसका प्रोबेबिलिटी तो डिवीजन में आ ही जाएगा, बोलो तो हाँ कि ना? Yes. यस। पर यहाँ पे ना एक मैं इंटरेस्टिंग चीज लिखने वाला हूँ, आप लोग मुझे बताना क्यों होगा ऐसा, ठीक है? P ऑफ A गिवन BI इंटू P ऑफ BI। एक चीज सोचो, यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर मैं नॉर्मल अपना कंडीशनल वंडीशनल का सोचूं तो मुझे ये लिखना चाहिए था A इंटरसेक्शन BI, बोलो तो करेक्ट? बताओ हाँ कि ना? टेल मी गाइस, यस और नो? Yes. यही तो सीखा था ना, कंडीशन ये वाला कंडीशनल इक्वल्स इंटरसेक्शन डिवाइड बाय डिवीजन वाला, हाँ कि ना? तो मुझे न्यूमरेटर में अभी जो मैंने लिखा है उसकी जगह ये लिखना चाहिए था, राइट? अब अगर मैं सोचूं कि ऐसा क्यों लिखा होगा उन्होंने, पी ए गिवन बी आई क्या होता है बताओ तो? पी ए इंटरसेक्शन बी आई डिवाइड बाय पी बी आई डिवाइड बाय पी बी आई होता है, हाँ कि ना? तो पी ए इंटरसेक्शन बी आई आ गया ना जो ऊपर मैंने न्यूमरेटर में लिखा है, बताओ यस और नो गाइस? समझ में आई बात Yes. Yes. कि वो बेस ने वो फॉर्मूला कहां से उठाया होगा, राइट? तो एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, राइट? You know that event A has already taken place. Based on that, you are trying to find out what is the probability that it is coming from a particular part of that entire sample space. Does that make sense, guys? Yes or no? Any questions? This is sort of the first reading material that we have, right? जिसमें उन्होंने cover किया है हमारे लिए sort of basics of what probability is, what Bayes theorem is, what conditional probabilities are, right? What sample space, event space, all these things mean, right? What I would want from you all is थोड़ा बहुत इसका question solve करना, ठीक है? For now, we'll move on quickly to the next reading. मैं आज के लिए थोड़ा सा स्लो रखूंगा, आई वोंट लाइक पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन थिंग्स। अच्छा, आप लोग ने पहले इनके वीडियोस देखे हैं क्या इन टॉपिक्स के? बताओ तो, have you watched videos before for these topics or this is the first time you are like probability जैसा टॉपिक मैं समझता हूँ आप लोग ने हाई स्कूल में किया होगा, बट वैसे फॉर्मली एफआरएम की क्लासेस जब से आपने ली है वैसे तब से आपको वीडियो सेट मिला वो सब आपने देखा कि पहली बार कौन के लिए रिवीजन सेट सी है जो आप शुरू कर रहे हो, बताओ तो? So I've gone through the material and seen the video, but it's been some time. Like I'm going through a It's been some different. time. Yeah. Okay. What about you, Manoj? What about you, Samiksha? Tell me. Just to get a common. I've started pods. So Okay. I'll be revision lecture at my thought. I'll attend So- this. And side by side, I'm watching the videos as well. Okay. So आप कौन से रीडिंग में हो, if you mind telling me, Manoj? Pods इसमें probability start किया था मैंने. अच्छा, probability भी स्टार्ट किया, तो अभी मतलब साथ साथ में ही चल रहे हो ऑलमोस्ट, करेक्ट? Yes. एंड व्हाट अबाउट यू, समीक्षा? So I have seen some of the sets, some of the videos. I've just started. Okay. You just started as well. For Yes. cons as well? Yes. ठीक है, cool. Then I'll keep that way. वैशाली, I know this at times it may seem basic for you. नहीं तो ऐसा लगे तो मुझे बता देना, तो मैं उसको पेस थ्रू कर सकता हूँ क्लास को, ठीक है? ओके। Yes. मनोज, समीक्षा as well, I would suggest you all की थोड़ा सा मे भी वीडियोस कौन का देखना शुरू कर दो, तो रिवीजन सीरीज और काम आएगा आपके, है ना? चल Yes. Okay. ठीक है, चल. So let's move on to the very next chapter, right? We'll start with the next chapter, that is random variables for now, right? क्या होता है random variables? कभी सुना होगा? और like whenever I ask things, right, what I expect from you all is usually कि try to explain to me in as elementary way as possible. चीजों को ब्रेक डाउन करो, सिंप्लीफाई करो और तब समझाने की कोशिश करो, ठीक है? ये कॉम्प्लिकेटेड कल्चर तो कोई भी बोल के चला जाएगा, टर्म जार्गन यूज करना सबको आता है, सिंप्लीफाई करके चीजें समझाना ना लोग यूजुअली कर नहीं पाते। तो बताओ, एनीवन? टेल मी गाइस, एनीवन व्हाट्स अ रैंडम वेरिएबल? एनी गेस यार, मतलब कभी किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो क्या बोलोगे?
I would say it's a possible, any possible Hmm. outcome of something, Okay. any Any possible possible? values which you take, right? Okay. That can So you're saying कुछ numerical value होगी, right? Till now events were, for example, HT, right? Now there'll be some numerical understanding of it, correct? Yeah. Yeah. That's why the name variable as well, right? एक बात बताओ अभी, like back in high school, we did things like solve the set of equations, right? X plus y equals 2, x minus y equals, for example, 4. You set 2x equals 6, x equals 3, and y equals -1. याद है ना सबको? हाँ कि ना? Right? This x and y, what did we call these things? We call them variables. हाँ कि ना? Right? Agreed, guys? Yes or no? Yes. Yeah. Yeah. Now, what I'm saying is, let's make this random in nature. Essentially, what I'm trying to say is, these variables, abhi tak, given these sets of equations, I could find out their fixed values, right? X will always be 3, y will always be -1, given these sets of equations. Now, you won't have a set of equations through which you can solve for these values, and they will be random in nature. Matlab, you don't, they can take a range of values, essentially, right? They don't necessarily take just one value, right? That is the fundamental of what we call as a random variable. That's a random variable, जैसे, right? And one thing Vaishali said that was very useful was कि there's usually a numerical thing attached to it. जैसे, for example, the example that we're talking about for the probabilities exercise, right? You tossed a coin, so your sample space is HT. Event space, if I say it's you getting ahead, it is H, right? Now, see how you will define a random variable. The thing about random variable is जैसे ही random आया ना, अब small x यूज करना बंद कर दोगे. कैसा x यूज करोगे? कैपिटल x यूज करोगे. पहली बात तो ये. डिफाइन कैसे करोगे? देखो, आप लिख सकते हो नंबर ऑफ हेड्स obtained when tossing a coin. ठीक है, समझ लो. देखो, जैसे ही नंबर ऑफ हेड्स लिख दिया, इट विल बी अ नंबर. बताओ हाँ कि ना? करेक्ट. क्या क्या नंबर हो सकते हैं ये बोलो. जब मैंने कॉइन को एक बार उछाला, what are all possible outcomes that x can have? Anyone? two, right? Two outcomes, head or What? tails. No. Think about the outcomes. That is the sample space of that event, right? But I'm talking about what are the values that capital X can take. Socho. Just one head. Or it can be 0 heads, Yeah, right. right? If you get a tail, value of X क्या होगा? 0. Zero. If you get a head, value of X क्या होगा? One. 1. क्या ये बात सबको क्लियर है? बताया यार हाँ कि ना? समझ में आया ये रैंडम वेरिएबल्स कैसे डिफाइंड होते हैं? बोलो बोलो, सब लोग बोलो मेरे को. Yes. या व्हाई इज दिस रैंडम इन नेचर? पता है क्या आपको हेड मतलब कॉइन उछालने के लिए हेड आएगा कि टेल आएगा? पता है क्या आपको कॉइन उछालने के लिए एक्स की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी? नहीं ना. हो गया ना रैंडम नेचर, राइट? तो ऐसे ही वेरिएबल को जो रैंडम होता है नेचर में, जिसकी वैल्यू आपको मालूम नहीं है, आपको शायद मालूम है वो 0 1 2 5 6 जो भी सेट ऑफ वैल्यूज है उनमें से कुछ होगा. यहाँ पे जैसे 2 वैल्यूज है, और भी 10 हो सकते थे. इससे रोलिंग अ डाइस, राइट? उसका पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 6 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, है ना? फिर एक और चीज हम यहाँ सीखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स कैपिटल एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल्स स्मॉल एक्स, व्हिच यू आल्सो कॉल्ड एफ ऑफ एक्स. बताओ दोनों पॉइंट पे क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 0 क्या होगा? बोलो, ऊपर लिखा है हमने. बोलो मनोज. 50%. 50%. तो 0.5 0.5, राइट? तो यही है अपना एक तरीके से जिसको अपने कहते हैं, ये जो मैंने बनाया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स या स्मॉल एफ एक्स. We give a special name to it. Now, the thing with statistician is they want to not let a lot of people know about very simple things, so they give complicated names. So they've given a complicated name. This is called probability mass function. ठीक है? Probability mass function जो आपको बेसिकली ये बताता है कि हर पॉइंट ऑफ एक्स से प्रोबेबिलिटी क्या है. एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं. ठीक है? तो ये फंक्शन का फॉर्म ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक फंक्शन हो सकता है ना 1/2,
probability of capital X equals small x is equals to 1/2. ठीक है, समझ गए? Right? Before we move on to the next, at any point of time, guys, feel free to interrupt me. कुछ नहीं समझ में आया, कुछ interrupt करके पूछना हो, feel free to let me know. ठीक है? अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई तो जो रैंडम वेरिएबल्स है ना, अगेन दो टाइप के होते हैं. ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स मैंने भी कहा सिंप्लीफाइड क्यों रहेंगे, दो टाइप के रैंडम वेरिएबल्स सीखेंगे. एक अपने कहते हैं डिस्क्रीट, दूसरा कहता है कंटिन्यूअस. ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बेसिक रैंडम वेरिएबल्स. तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या हुआ, एज अ नेम सजेस्ट, जो डिस्क्रीट वैल्यूज ले, मतलब एट पॉइंट्स प्रोबेबिलिटीज हो. जैसे अगर x इक्वल्स की रेंज हुआ 0 1 2 3 4, अगर इंफिनिटी तक भी हो, ये हुए डिस्क्रीट पॉइंट्स हुए, तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. राइट? कंटिन्यूअस क्या हुआ, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हुआ अगर रेंज में हो गया, से वेट ऑफ इंडिविजुअल. राइट नाउ दैट कैन बी बिटवीन से 50 एंड 60. तो एक बात बताओ, 50 और 60 के बीच में कितने नंबर्स हैं? इफ यू थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 60? एनीवन? If we talk about whole numbers, it'll be 10, but Right, but it's a continuous series, right? So it's hard to. So it's infinite, right? If you Yeah. think about it, there are infinite numbers between 50 and 60. कोई लिमिट ही नहीं है. डेसिमल्स में सोचो कितने ही नंबर्स हो सकते हैं, राइट? इसलिए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जब डिफाइन करते हो ना, क्या वैल्यूज ले सकता है, हमेशा ऐसे रेंज में डिफाइन करते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने किया ना कि 50 से 60 के बीच में होंगे वैल्यूज, राइट? सो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आर ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, in terms of a range, in terms of a reference range. Sorry guys, can you hear me? बताओ यार, आवाज आ रही है? Yes, yes. हाँ, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स को अपने हमेशा एक रेंज में डिफाइन करते हैं, बट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स कि 0 1 2 3. तो ये फर्क होता है डिस्क्रीट में भी. डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बीच में तो दो तरीके के रैंडम वेरिएबल होते हैं. ठीक है, अच्छा, हमने अभी तक सीखा क्या? अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सीखा. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, राइट? वन मोर फंक्शन दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. Cumulative distribution function. Now, cumulative distribution function is nothing but capital F of x. Okay, it is defined as capital F of x, which is nothing but probability of capital X less than equal to small x. मतलब जैसे यहाँ पे मैं क्या ना probabilities का एक बनाता हूँ, फिर तीन वैल्यूज ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेना. 0 1 2 probability of capital X equals small x, 0.1 0.3 और 0.6 फॉर एग्जाम्पल. अच्छा, एक खास बात बताओगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स की? कुछ नोटिस किया पैटर्न जो मैंने ऊपर वाला आपने डिफाइन किया और नीचे वाले में डिफाइन किया? एनीवन? देखो, एक तो ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वाली वैल्यू क्या आपने नोटिस किया, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. बोलो तो करेक्ट. और एक और चीज क्या नोटिस किया, कोई बताओगे? Anyone? Did anyone notice something else as well? बोलो यार, बोलो बोलो. Anyone? देखो, one thing else that you would notice about this is the summation of probability of capital X equals small x. Now this is only for discrete random variables. ठीक है, ये स्पेसिफिकली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए है. ठीक है, क्या है समेशन? 1 है अक्रॉस ऑल एक्सेस. देखो, ऊपर भी 0.5 प्लस 0.5 1 था, नीचे भी 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.6 1 है. तो सारी प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 को समाप्त करती है, हमने शुरू में कहा था ना. करेक्ट? बोलो तो करेक्ट. समझ में आई ये बात? टेल मी गाइस, शांत रहोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा. ये आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, मैं वापस कहूंगा. But does this make sense to everyone? So what I'm trying to say is, जो एक पीडीएफ है, जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है,
एक बात बताओ, x या तो वैल्यू 0 लेगा या तो 1 लेगा। इन दिस केस या तो वैल्यू 0 लेगा या तो 1 लेगा या तो t लेगा। यही तो 3 पॉसिबल आउटकम्स है। फिर यही 3 पॉसिबल आउटकम्स है, तीनों का जो सम है उसको 1 होना पड़ेगा ना, कोई चौथा इवेंट है ही नहीं, राइट। तो किसी और पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर यही 3 प्रोबेबिलिटी है, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को 1 होना पड़ेगा ना, नहीं तो सैंपल स्पेस का सारा सम 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है बात? बताओ यार, हाँ कि ना? Yes. Yes? Manoj, Samiksha, does that make Yes. sense? Yeah? Right. So this is what we call the probability mass function के तो probabilities होते हैं discrete random variables में greater than, जो हर point पे ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे साइंस गलत थे, उल्टी सीधे कर दिया मैंने, कि हर probability of capital X equals small x हमेशा greater than equal to 0 होगा, और सारे points पे जो PDF है probability mass function है उसका जो sum up करोगे वो 1 पे आएगा। ठीक है, those are the two things that we need to know. अब जब क्यूमुलेंट फंक्शन में आता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। अब ये देखो, अच्छा लेस देन इक्वल टू 0 मतलब इक्वल्स टू 0 है ना, तो वही 0.1 आ जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 मतलब क्या, 0 या 0 से कम। 1 या 1 से कम में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल 1 हो जाएगा। बताओ हाँ कि ना? लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 0 प्लस 1। अग्रीड गाइस, यस और नो? तो 0.4 लिख दूं। फाइनली क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, इक्वल्स टू 0 प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस इक्वल्स टू 2, हाँ कि ना? तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? या Okay, that is what we call a cumulative distribution function. So capital F of x is what? Probability of capital X less than equal to small x. आप देखोगे capital F of x at infinity is always 1, right? जो अपर पॉइंट होगा उस पे लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, और अगेन कैपिटल एफ ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हर किसी भी पॉइंट पे। डज दैट मेक सेंस? एनी क्वेश्चन सो फार? बोलो, क्लियर है सबको? देखो सेकेंड रीडिंग मैंने एक टॉपिक बाकी है मोमेंट्स का, 4 मोमेंट्स इन्होंने कवर करवाए हैं, राइट। ये चारों मोमेंट्स मैं साथ में ही कवर करवाना चाहूंगा, तो मैं कल ही शुरू करूंगा। बट आज वाले पोर्शन में किसी को कोई भी डाउट है बताओ यार। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? क्लोज टू 15 चैप्टर्स। शुरू के टॉपिक्स तो छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो ये शुरू के 4-5 टॉपिक्स तो जल्दी कवर हो जाएंगे, बाद के टॉपिक्स में फिर थोड़ा थोड़ा जोर आने लगता है, ठीक है। तो शुरू में आपको इतना मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, आगे जाके जैसे टाइम सीरीज आएगा, मशीन लर्निंग आएगा, हाइपोथेसिस, सीआई, दोज विल बी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स एज सच, राइट। सो अभी तो लाइक इजी गोइंग टॉपिक है, अभी एक हफ्ते इजी गोइंग ही रहेगा। तो कोई दिक्कत है तो अभी बता दो यार, बिकॉज दिस इज सॉर्ट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू। हाँ वैशाली? Yeah, all good, sir. ऑल गुड, चलो। आई होप दैट्स द केस विथ यू ऑल एज वेल। समीक्षा, मनोज, टेल मी। Yes, sir. चलो All good, sir. बढ़िया, कोशिश करना आप लोग श्रेजर वाले बैक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते रहो, राइट, सो दैट डे आफ्टर टुमारो व्हेन वी कम बैक वी कैन लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोर्शन, राइट, एंड देन गेट डन विद रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रॉब्ली स्टार्ट विद अ फ्यू यूनिवेरिएट एग्जांपल्स दिस वन। ठीक है, चलो फॉर नाउ आई विल क्लोज। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल डे आफ्टर, बाय बाय। Thank you, sir.